Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, this is your social science book and this is the history part. And we are reading chapter 9, The Making of the National Movements 1870s to 1947. This is the page number 111 and today's subtopic is A Nation in the Making. Let's start. It has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate in its objectives and methods. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. It wanted the Legislative Council to be made more representatives, given more power and introduced in provinces where none existed. It demanded that Indians be placed in high positions in the government. For this purpose, it called for civil service examinations to be held in India as well, not just in London. जब कांग्रेस बनी तो फर्स्ट 20 इयर्स में मॉडरेट्स जो होते थे, जो कि गवर्नमेंट को अपना जो भी उन्हें इश्यूज़ रहते थे वो उन्हें लिखित में उन्हें सौंपते थे और उन पर चर्चाएं करके उन्हें लागू करवाना चाहते थे। तो हमारे बहुत सारे लगभग 20 इयर्स तो जो कांग्रेस थे उसमें मॉडरेट्स थे और इस पीरियड में वो अपनी जो उनकी डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा सुनी जाती थी। वो बहुत बड़ी लोगों की मतलब हम भारतीयों की ग्रेटर वॉइस वो कहलाते थे। वो चाहते थे गवर्नमेंट में उन्हें भी स्थान मिले, एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हें भी स्थान मिले और वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें वो उनके जो लोग हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बन के रहें, उन्हें ज़्यादा पावर मिले ताकि वो अपने देश के हित के लिए अपने लोगों की बात जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके सामने रख सके। और उन्होंने डिमांड रखी कि जो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें इंडियंस को भी स्थान मिले, हायर पोस्ट मिले और इसके लिए उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की मांग रखी कि वो ना सिर्फ लंदन में लिया जाए बल्कि भारत में भी लिया जाए। इसके एग्ज़ाम के द्वारा जो गवर्नमेंट होती थी उसमें हाई पोस्ट पाई जाती थी, तो उन्होंने डिमांड रखी। पहले वो सिर्फ लंदन में होता था, तो जो कांग्रेसी थे उन्होंने डिमांड रखी कि वो ना सिर्फ लंदन में हो बल्कि उस एग्ज़ाम को भारत में भी लिया जाए। द डिमांड फॉर इन of the administration was part of a movement against racism, since most important jobs at that time were monopolized by white officials and the British generally assumed that Indians could not be given positions of responsibility. Since British officers were sending a major part of their large salaries home, Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. Other demands include the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act and the freedom of speech and expression. ज़्यादातर ब्रिटिशर्स को ये लगता था तो जो इंडियंस हैं वो अच्छी पोजीशन प्राप्त करने के लायक नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरह से नहीं निभा पाएंगे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में के लिए डिमांड रखी गई कि जो उस वक्त वहाँ पर भेदभाव होता था कि जो वाइट ऑफिसर्स थे उन्हीं का एकाधिकार था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो हमारे कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने ये बात रखी कि अब इस रेसिज्म के मतलब इस नस्लवाद के भेद को समाप्त किया जाए। उन्होंने मूवमेंट किया कि हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन में स्थान चाहिए। तो उन्होंने इसके साथ साथ ये भी डिमांड रखी कि जो जुडिशियरी है एग्जीक्यूटिव से उसे सेपरेट कर दिया जाए और जो आर्म्स एक्ट जो लगाया गया है कि भारतीय लोगों को हथियार रखने की परमिशन नहीं थी उसे समाप्त किया जाए और इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी उन्हें दिया जाए। The early Congress also raised a number of economic issues. It declared that British rule had led to poverty and famines. Increase in the land revenue had impoverished peasants and zamindars, and exports of grains to Europe had created food shortage. The Congress demanded reduction of revenue,
cut in military expenditure and more funds for irrigation. It passed many resolutions on the salt tax, treatment of Indian laborers abroad, and the sufferings of forest dwellers caused by an interfering forest administration. All this shows that despite being a body of educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, jamidars or industrialists. The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. They published newspapers, wrote articles, and showed how British rule was leading to the economic ruin of the country. They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public opinion. They felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demands of Indians. What was necessary, therefore, was to express these demands and make the government aware of the feeling of Indians. हमारे जो कांग्रेसी लीडर्स थे, पहले उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज भी रखे, गरीबी हमारे देश में, अकाल पड़ते रहते थे ब्रिटिश रूल के समय में, और वो कभी भी इनके लिए जो है दया भाव नहीं दिखाते थे। टैक्स लेना है तो भरपूर लेना है। तो जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने बोला जो सॉल्ट टैक्स है, जो लेबर्स के साथ, जो इंडियन लेबर्स के साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो भी गलत है। ये सारी चीज़ों का उन्होंने विरोध किया, और जो मॉडरेट लीडर्स थे इसके लिए उन्होंने पब्लिक को अवेयर करने के लिए न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया, आर्टिकल्स लिखे। वो बताना चाहते थे कि जो ब्रिटिश रूल है हमारे देश में वो हमारे लिए किस तरह से आर्थिक रूप से हमारा नुकसान कर रहे हैं, और इसके लिए वह डिफरेंट पार्ट में हमारे देश के जाते थे और पब्लिक का ओपिनियन भी लेने की कोशिश करते थे और लोगों को जगाने की कोशिश करते थे और बताने की कोशिश करते थे कि जो ब्रिटिश हैं वो हमारे फ्रीडम के लिए, फ्रीडम को किस प्रकार से उन्होंने जकड़ रखा है और हमें फ्री होना पड़ेगा। जो इंडियंस की जो डिमांड्स हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने वो हमारे लीडर्स जो थे वो रखते थे। जो परेशानियां थी उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अवेयर करने की कोशिश करते थे, इंडियंस की फीलिंग्स को बताने की कोशिश करते थे। चिल्ड्रन, ये सारा आपको पढ़ लेना है, यहाँ पर कुछ मीनिंग्स भी दिए हैं वो भी आपको रीड करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें दिया गया है फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आपको डीपली पढ़ लेना है, जहाँ भी टफ वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन करना है, उनके मीनिंग फाइंड करके उनको भी आपको कॉपी में लिखना है। ओके, टिल देन गुड डे।